lecture number 19 of final accounts with adjustments, and we are doing comprehensive questions with GST adjustments. Please open question number 33. It's a huge question. काफ़ी adjustments कम है, accounts ज़्यादा हैं. Question 33. From the following trial balance of Kalki traders, you are required to prepare trading and P&L account for the year ended 31st March 18 and balance sheet as at that date. We are supposed to make trading P&L from the Kalki trader books in the books of Kalki or Kalki traders. Trading and profit and loss account. Please make the format everyone for the year ending 31st March 18. Because question is lengthy, so we'll make them. We'll take more space for that. And here we have our working notes. And then we have balance sheet. Okay. Adjustments में we have closing stock, purchases, plant and machinery, bad debt provision, outstanding expenses. Opening stock, debit side of trading account. 2. Opening stock. Purchases, debit side of trading account. Plant and machinery, non-current asset. Office expenses and plant and machinery की depreciation at 10% deducted from the asset. And debit side of P&L account. P&L account में debit side. 2. Depreciation on plant and machinery 9,000. Office expenses, debit side of P&L account. 2. Office expenses 2040. Carriage inward, debit side of trading account. 2. Carriage inwards. Carriage outwards, debit side of P&L account being indirect expense. फैक्ट्री रेंट आएगा नीचे ही, चाहे फैक्ट्री है, बट ये कोई नॉन रेकिंग एक्सपेंस नहीं है, गुड्स बनाने के लिए खर्च नहीं होता, जगह का खर्चा है. P&L अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट. 2. फैक्ट्री रेंट. इंटरनेट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डेबिट साइड ऑफ P&L. Salesman commission, debit side of P&L account.
sundry debtors, assets, debtors we have our 1,08,000, एडजस्टमेंट में नीचे है बैड डेट की प्रोविजन 2% लगानी है, कोई फर्दर बैड डेट्स नहीं, कोई डिस्काउंट की प्रोविजन नहीं, जस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2%. I guess 2160. Let me verify that again. 1,08,000 minus 2%. It's 1,05,840. Yeah. Moving to office rent, indirect expense to office rent 3,720. Printing and stationery, indirect expense to printing and stationery 480. Audit expenses to audit expenses 9,000. Indirect expense. Advertisement expenses, indirect expense. P&L debit side 9,000. Computer and related items. Computer and related stands for computer के साथ CPU, scanner, etc. mouse, keyboard. Assets. Computer and related items 18,000. No adjustment, no depreciation. Drawings subtracted from capital, capital minus drawings 4,800. Salaries and wages, indirect expense with adjustment to salaries and wages. अच्छा, अगर वेजेस एंड सैलरीज होता तो हम ट्रेडिंग में डालते, सैलरीज एंड वेजेस हैं इसलिए हम P&L में डालेंगे. 9240 प्लस आउटस्टैंडिंग 2760. 9240 हम पे कर चुके हैं जो कि ट्रायल बैलेंस में है, और 2760 हमने भी नहीं पे किए जो कि एडजस्टमेंट में है. एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, क्वेश्चन में सिर्फ सैलरीज बोला है, यू कैन राइट एंड वेजेस ऑल्सो. मूविंग ऑन, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, प्रोडक्टिव एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है. डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 4560 प्लस आउटस्टैंडिंग 1800. 4560 plus 1800 is 6360, and outstanding manufacturing wages are current liabilities. Then we have is furniture and fixture asset. Furniture and fixtures assets, which is 3600, and we have depreciation 15% minus depreciation 15%. 3600 का 15% is 540. 3600 minus 15% 3060, and depreciation being indirect expense we will debit it in P&L account. हाँ, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पड़ी होती तो हम यहाँ से माइनस ना करते, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ऐड कर देते. अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन होती तो टू
depreciation on furniture and fittings 540. Next, gas, coal and water direct expense 2. Gas, coal and water direct expense 1800. Cash in hand, cash at bank, these are current assets. Bank 10,800 and cash 12,900. Repairs and renewals indirect expense 2. Repairs and renewals indirect expense 1200. बेसिक कस्टम ड्यूटी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, रॉ मटेरियल पे करना पड़ता है, अब वो जीएसटी में मर्ज हो चुका है. बेसिक कस्टम ड्यूटी 2. बेसिक कस्टम ड्यूटी is the tax on raw material, direct expense. Telephone expenses indirect expense 2. Telephone expenses indirect expense 300. Bank charges indirect expense P&L में debit side 2. Bank charges which is 120. Input CGST, input SGST, input IGST, we'll do it later on. Capital account liability 1,68,000. Sales income, direct income, credit side of trading account by sales 3 lakh. आउटर कॉलम सेल्स रिटर्न नहीं है, होती तो डेबिट साइड पे हम एडजस्ट कर चुके होते. सन्ड्री क्रेडिटर्स liabilities, sundry creditors liabilities 48,000. Provision for doubtful debts, working note bad debts क्वेश्चन में नहीं है, प्लस फर्दर बैड डेट्स क्वेश्चन में नहीं है, प्लस न्यू प्रोविजन for doubtful debts 2160 minus old provision for doubtful debts 5700. हमारे पास 5700 की प्रोविजन पड़ी हुई थी. प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में हमारे पास 5700 की प्रोविजन पड़ी हुई थी. इस साल कोई भी बैड डेट्स नहीं हुए, ना ही कोई एक्स्ट्रा स्पेशल बैड डेट्स हुए, तो 5700 की प्रोविजन हमें चाहिए अब 2160, क्योंकि कुछ बैड डेट्स हुए ही नहीं, तो हमें पता लग गया बैड डेट्स नहीं होते या अब कम होंगे, तो हमें प्रोविजन कम करनी है. प्रोविजन कम हो रही है तो वो इनकम बन गई, क्योंकि पहले प्रोविजन बनी हुई है. तो कहने का मतलब है ये नेगेटिव आ रहा है 3540, इसीलिए P&L में क्रेडिट साइड जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. वर्किंग नोट 1, इसका मतलब है एक्सेस प्रोविजन. पिछले साल हमने ज्यादा प्रोविजन बनाई थी, जरूरत नहीं थी इतनी. बैंक लोन लायबिलिटी, बैंक लोन लायबिलिटी 11,100. कमीशन रिसीव्ड इनकम बाय कमीशन, नो अक्रूड नथिंग. Commission 900. Adjustment number 1, closing stock was valued 60,000. Closing stock trading account में credit side, closing stock 60,000 and balance sheet में asset side stock or closing stock 60,000. Adjustment number 2, during the year
गुड्स वर्थ 6,000 वर विड्रॉन फॉर बिजनेस फॉर स्टाफ वेलफेयर। 6,000 के गुड्स स्टाफ वेलफेयर के लिए बिजनेस से निकाले हैं। इसकी जर्नल एंट्री बनती है स्टाफ वेलफेयर टू परचेजेस, स्टाफ वेलफेयर टू परचेजेस। कितने गुड्स बिजनेस से निकाले? 6,000 टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। हमें GST कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि ये गुड्स बेचे नहीं हैं। जो गुड्स बेचते नहीं, विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए, विड्रॉ करते हैं स्टाफ के लिए, विड्रॉ करते हैं कस्टमर्स को देने के लिए एज एडवर्टीजमेंट, चैरिटी करते हैं, डोनेशन करते हैं, उनके लिए GST कैंसिल करना पड़ता है। वी हैव डन दैट इन जर्नल। GST है 6%, 6,000 का 6%, 360। अब ये कहाँ जाएगा? ये इनपुट GST में एडजस्ट होगा, ये इनपुट GST में एडजस्ट होगा, ये परचेजेस से माइनस होगा, और ये स्टाफ वेलफेयर ये खर्चा है, ये परचेजेस से माइनस होगा, और ये खर्चा है P&L में डेबिट साइड। सो परचेजेस में से माइनस 6,000 माइनस विड्रॉन फॉर वर्कर्स या फॉर स्टाफ 6,000, 183,600 minus 6,000, 177,600। और P&L में डेबिट साइड जगह थोड़ी कम है तो मैं यहां पे डाल रहा हूं स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस गुड्स वर्किंग नोट नंबर 2। हाउ मच इट इज? 6,720। GST की एडजस्टमेंट पेंडिंग है अभी। Plant and machinery is depreciated by 10% and furniture and fitting 15%. Asset में से माइनस and P&L में डेबिट साइड। Bad debt provision is 2%. Debtors में से माइनस and P&L में डेबिट साइड। इसमें नेगेटिव हो रहा था तो क्रेडिट में चला गया। Outstanding expenses liability साइड and expense में प्लस। और अगर आप ध्यान देंगे तो पूरे क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं एक्सेप्ट GST। सो द बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख प्लस 60,000। द टोटल इज 3,60,000 and the balance will be gross profit balancing figure 3,60,000 minus 6,360 minus 3,960 minus 1,800 minus 600 minus 177,600 minus 44,400 is 125,280. $125,280. Clear? This gross profit will be transferred to P&L account by gross profit 125,280 plus 3,540 plus 900. The total is 129,720 and the balancing figure is net profit. लॉस भी आ सकते हैं जो बैलेंस शीट में जाएगा। लेट्स सी प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस। $57,120. So let me check once again.
57,120. Have a look on that. I'm giving you 2 minutes. Complete trading and P&L account along with working notes. Then we'll do the adjustment of GST. Speed up. Speed up, students. Now let's adjust the GST. So पहले input GST, working note number 3, input, इसका बैलेंस होता है डेबिट, CGST, SGST, IGST. CGST गिवन है 2000, SGST गिवन है 2000, IGST गिवन है 500. तो डेबिट वाला प्लस क्रेडिट वाला माइनस, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है ना, ये लेजर अकाउंट बना लेंगे, उससे ये एंट्री की पोस्टिंग हो जाएगी. जब आप CGST SGST अकाउंट बनाएंगे तो उससे पोस्टिंग हो जाएगी. सो 6 अकाउंट बनाने पड़ेंगे. इनपुट C, इनपुट S, इनपुट I, आउटपुट C, आउटपुट S, आउटपुट I. सो अभी के लिए डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस, वी हैव क्रेडिट -360 -360, right? So what we are left with, 2000 minus 360, 1640, 1640, 500, and the total is 3780. अब यही हम करने जा रहे हैं आउटपुट GST के साथ, जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है 2500, 2500 and 400. क्रेडिट वाला प्लस डेबिट वाला माइनस. आई रिपीट, क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस, क्योंकि आउटपुट है. एडजस्टमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है. टोटल डेबिट है 3780, क्रेडिट है 5400. आई रिपीट, credit has 5400, debit has 3780. That means credit is greater than debit.
by 1620. Credit is greater than debit by 1620 and this is our liability क्योंकि क्रेडिट बड़ा है. गॉट इट. होगा कैसे? सी करेगा सी को कैंसिल. यहां तक समझ आ गया आपको? अब हम लिख देते हैं लाइबिलिटी साइड. सो लेट्स राइट ऑन द लाइबिलिटी साइड हियर GST वर्किंग नोट नंबर 3 1620 CGST SGST. लिखोगे ठीक तब भी, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा. 60 नहीं तो सीधा 1620 लिखो. बट इफ यू वांट टू 1620 प्लस डिवाइड बाय 2 800C 800S. बाइफिकेशन नहीं भी करोगे तो चलेगा. बट इफ यू डू दैट नाउ सी C कैंसिल विथ C. 1640 ने 2500 को कैंसिल किया. 860C रह गया. ये समझने के लिए नोट करने की जरूरत नहीं है. 2500 में से 1640 गए, रह गया 860. अब ऐसे ही S के साथ करेंगे. 2500 में से 1640 गए, रह गया 860. I 500 में से 400 गया, रह गया 100. So 860 plus 860 minus 100 1620 क्योंकि ये I इसको कैंसिल कर देगा. Got it? So it just will close like this. You can still do that कि अभी C इतना है, S इतने और I अभी इस तरफ पड़ा हुआ है और I ने C को कैंसिल कर दिया और you just write down this. सेट ऑफ की एंट्रीज हमने नहीं डाली. क्लियर? Now we'll close. Okay, there is one, you know that audit expenses 3000 and 9000 nahi. Audit expenses are 3 not 9. So the net profit is 63,120. That was error of commission. The net profit will add in capital. Net profit को हम capital में add करेंगे 63,120. 1,68,000 minus 4,800 plus 63,120 is 226,320. 1,68,000 minus 4,800 plus 63,120 2,26,320 and your balance sheet will match with a total of 2,91,600 liability side. And same is asset side. और नीचे एक नोट दे देंगे. हमने फैक्ट्री रेंट ऑफिस में डाला है P&L में. आप ट्रेडिंग में भी डाल सकते हैं क्योंकि रेंट फैक्ट्री का है. अगर फैक्ट्री पर्टिकुलरली रॉ मटेरियल्स के लिए ही यूज हो रही है, अदरवाइज P&L. अगर उसमें गोडाउन भी है, कई फैक्ट्रीज में गोडाउन भी होता है, गोडाउन रेंट तो P&L में जाते हैं. तो क्योंकि मैंने P&L में डाला इसलिए मैं नोट दे रहा हूं. अगर आप ट्रेडिंग में डालेंगे तो फुट नोट की जरूरत नहीं है. आई रिपीट, इफ यू पुट फैक्ट्री रेंट इन ट्रेडिंग देयर इज नो नीड फॉर फुट नोट बिकॉज वी हैव posted in P&L we are giving the footnote. Factory rent has been taken as indirect in nature. Full stop. Thus recorded in P&L account. Full stop. आप इसे ट्रेडिंग में करेंगे तो फुटनोट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेंशन किया हुआ है फैक्ट्री. मीन्स वहां गोडाउन नहीं है. देयर इज नो गोडाउन रेट. सो आई एम गिविंग यू 1 minute to have a look for balance sheet. 1 minute for balance sheet. Speed up.
इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि फैक्ट्री रेंट था जो हमने P&L में डाल दिया ताकि फुटनोट से एक्सप्लेन करें, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट साइड आ रहा है, मींस एक्सेस प्रोविजन बनी हुई है, इतनी प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है जितनी प्रोविजन हमने बनाई है। नाउ हैव अ लुक ऑन द एंटायर क्वेश्चन, सारी एडजस्टमेंट्स को गो थ्रू कीजिए, कोई चीज स्किप हो गई है तो उसको कंप्लीट कीजिए। एंटायर क्वेश्चन फॉर 1 मिनट, ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। वी हैव इनपुट GST, आउटपुट GST। कैंसिल करने से पहले हमने जो गुड्स विड्रॉ किए स्टाफ वेलफेयर के लिए उसको कैंसिल किया इनपुट GST से, क्योंकि जब गुड्स खरीदे होंगे तो GST पे किया होगा। अब वो गुड्स बेचे नहीं तो वो GST हम कैंसिल करके खर्चा मानेंगे, टैक्स नहीं, तभी वो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस में एडजस्ट किया गया है। नाउ 39th क्वेश्चन इज सेल्फ। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 दैट इज फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। स्टॉक ट्रेडिंग, परचेजेस ट्रेडिंग, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, ट्रेड एक्सपेंसेस P&L। ट्रेड है तब भी P&L, ये नहीं ट्रेड है तो ट्रेडिंग में चला जाएगा। that are not manufacturing expenses, carriage inward, direct, carriage outward, indirect, factory rent। ट्रेडिंग में डालोगे तो गुड, P&L में डालोगे तो फुटनोट। डिस्काउंट अलाउड, डेबिट है, डेबिट ऑफ P&L। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डेटर्स एसेट, ऑफिस रेंट P&L, प्रिंटिंग स्टेशनरी, जर्नल एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एडवर्टाइजिंग P&L, बिल्स रिसीवेबल एसेट, ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस, सैलरीज P&L डेबिट, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, फर्नीचर फिक्सचर्स एसेट, गैस कोल एंड वाटर डायरेक्ट एक्सपेंस, कैश इन हैंड कैश एट बैंक एसेट, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स डेबिट साइड ऑफ P&L, बेसिक कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग, टेलीफोन एक्सपेंसेस P&L, बैंक चार्जेस P&L, कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी। अच्छा टेलीफोन एक्सपेंसेस है, टेलीफोन होता तो एसेट होता। सेल्स इनकम ट्रेडिंग क्रेडिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, कमीशन रिसीव्ड इनकम, इनकम मीन्स क्रेडिट साइड ऑफ P&L। क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 40,000। ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड। Plant and machinery is to be depreciated at 10%, furniture and fixture 15%, asset में से minus, P&L में debit side. Bad debts reserve is to be raised to 2% on debtors, same. Bad debt reserve, अच्छा reserve है, लॉस होगा तो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम इसे प्रोविजन ही मानते हैं। डेटर्स में से माइनस, P&L में डेबिट साइड आफ्टर बैड डेट्स एडजस्टमेंट। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में से माइनस एंड एसेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड सैलरीज लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस में प्लस, वेजेस को वेजेस में प्लस, सैलरीज को सैलरीज में प्लस एंड लाइबिलिटी। अगर वेजेस और सैलरीज गिवन नहीं है तो अलग लिख दो, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। So this question is self. We'll continue the GST treatment in further lectures, that is lecture 20. Bye bye, take care. God bless.